Okay, so Ariban is saying that you are aware. Okay, Ravi is saying that he knows about the Times Group. Rupama is aware. So there are few people they are aware about the group. There are some people they are not aware. Okay, Manish, Ankit Sharma, Ankit Singh. Okay. So see, we are one of the group companies, from the Times Group. Times Group is into a lot of things, right? Uh, for example, Times Internet, Navbharat Times, The Economic Times, Times of India. You would have, been listening to Radio Mirchi, Zoom, Ghana.com, Filmfare Awards, and so on. So, okay, Robin, so you are aware of through the social media, but most of the brands you are looking at the, not most of, actually all the brands which are there, you are looking at the screen, they belongs to the Times Group. Okay. So, it is not social media, it is the media group. We have helped more than 1,75,000 learners in Times Pro, over the period of last 10 years. We have been working with some 500 partners and placed more than 70,000 students in different industries like banks, NBFCs, financial companies, insurance companies, supply chain, logistics, healthcare, and so on. So what we do is whenever there is a company looking for young, fresh graduates, we help the candidates to get them placed with those companies by training them. And training as per the industry is required, and training as per the employer is required. For example, a bank says that I need, BRO, or I need a relationship manager. And these are the things which is required by the candidate before the candidate gives the interview, or these are the minimum requirement in the qualification, in the communication percentage. So we shortlist the candidates and then we make them interviewed by the bank. So these are some of the companies we are working with, right? There are a lot of banks you will see, there are a lot of financial companies, insurance companies you will see. There are some retail companies, FMCD companies you will see, right? And that's the reason we are one of the best at tech companies and awarded by different groups in India. That the kind of commitment we have and the way we, train the candidates, the number of candidates we place every year, we've been awarded, uh, you know, every year by multiple organizations. वाई लोग बीएफएसआई इंडस्ट्री में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, बैंक्स में जॉब क्यों ढूंढते हैं लोग, दैट व्हाई शुड people think that working in a private bank or an insurance company helps. There are multiple factors. For example, the brand name. For example, you are working with SDFC. SDFC is a brand name. People they know कि एक बड़ा एक कंपनी है, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक में आप लोग जॉब कर रहे हो, तो पीपल दे नो कि ओके फाइन, सो दिस इज द कंपनी, फेमस कंपनीज, दे आर टू बिग a bank, to fail. Job stability is there, right? The sector is growing rapidly. Every year the sector is growing at a good percentage. वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड में कि किस सेक्टर में कैसे ग्रो कर रहा है. उसके बाद सैलरीज जो है, देयर सैलरीज आर वेरी डिसेंट, राइट? So if you start at an X amount, but every year the kind of promotion, kind of increments you get in this industry is very high. So that's the reason people they think that working in a government organization or working in a government bank or vis-a-vis government, working in a private bank,
So people they think working in a private bank is better. BFSI सेक्टर में होता क्या क्या है? What all things are there in BFSI sector? So there are few people who are raising their hands. कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं. सिमरन, उपेंद्र, राहुल बैनर्जी. गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल आंसर. बिकॉज इसमें आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. कोई भी आपका डाउट है, आप चैट बॉक्स में लिखो, आई विल आंसर यू बैक. ओके, थैंक यू सो मच. सो बीएफएसआई सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स एंड अदर एंटिटीज. तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द कंपनी in life insurance. Tata AIA is one of the life insurance companies. Then Oriental Insurance, ICICI Lombard, ये है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. जैसे किसी को अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है, दैट इज अ नॉन लाइफ. किसी को लाइफ इंश्योरेंस करानी है, अपनी इंश्योरेंस करानी है, दैट्स अ लाइफ इंश्योरेंस. सुमन, ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा. फाइन सुमन. तो बीएफएसआई में कमर्शियल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग तरीके की, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं. ठीक है. इन सब कंपनीज में जो जो कंपनीज इस बीएफएसआई सेगमेंट में आता है, हम लोग इस सेगमेंट में हेल्प करते हैं बच्चों को ट्रेन करने की और प्लेस करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है. जैसे मैं बोल रहा था कि सबसे पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, लोग सबसे ज्यादा इसमें काम करना चाहते हैं. ठीक है. 1,33,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं हिंदुस्तान में आज की डेट में. अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स को जोड़ दो, कोऑपरेटिव बैंक्स को जोड़ दो, 1,33,000 से ज्यादा ब्रांचेस है ऑल इंडिया. एनबीएफसी की 10,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं. राइट. 57 इंश्योरेंस कंपनीज और इनकी ब्रांचेस भी हैं. राइट. तो कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो भी बंदा काम कर रहा है, जो जॉब ढूंढ रहा है, एक तो उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं और वो ग्रोथ बहुत ज्यादा है. अब आप ये मानिए कि किसी भी एक कंपनी की अगर, या किसी एक सेक्टर की अगर 1 लाख से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो आप ये समझो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर कोई बंदा उसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है. 1 साल, 2 साल, 3 साल कहीं पे आप काम कर रहे हो, फिर आपको उससे बेटर जॉब कोई और कंपनी दे रही है, फिर आप वहां पे 2-3 साल काम कर रहे हो, प्रमोशंस ले रहे हो, तो ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिड है. जैसे मैं बता रहा था, हर साल ये जो कंपनी है बहुत अच्छे परसेंटेज से ग्रो करती है. राइट. सो दिस इज दी परसेंटेज, या परसेंटेज अगर आप देखोगे ग्रोथ रेट क्या है, ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों का. सो बैंक्स जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, 28% से ग्रोथ कर रहा है. तो आप ये समझिए कि अगर आपका अप्रेजल होता है हर साल, तो उसका परसेंटेज कैसा रहेगा अगर आपकी इंडस्ट्री, आपका बैंक कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है. इसीलिए जो लोग हैं वो बैंक्स में या इन कंपनीज में ज्यादा काम करना चाहते हैं. रिस्पेक्टफुल जॉब तो रहता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा. तो अगर आप पूछोगे कि ग्रोथ, बोल रहा हूं मैं बार बार कि ग्रोथ बहुत है, ग्रोथ बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पैसा है. अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो इस तरीके से आप लोग बढ़ते हो. जैसे किसने बोला मैं फ्रेशर हूँ, नैन्सी ने बोला कैन आई ज्वाइन दिस बैंक. तो नैन्सी, ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो फ्रेशर्स के लिए हो रहा है. ठीक है. अभी संजीत बोल रहा है मैं 25 ईयर सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर था, क्या हमें भी आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा. संजीत जी, आप एक बार मैं नंबर शेयर करूंगा लास्ट में, आप फिर तब फोन पे बात करना, तो देखेंगे कि हम लोग आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. सो दिस इज हाउ पीपल दे ग्रो. एंट्री लेवल से आप स्टार्ट करते हो, फीट ऑन स्ट्रीट से. फीट ऑन स्ट्रीट मतलब लोगों से मिलना, कस्टमर से मिलना. किसी को बैंक अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट, किसी को सेविंग अकाउंट खुलवाना है, कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहा है, किसी को लोन चाहिए, 2 व्हीलर लोन चाहिए, 4 व्हीलर लोन चाहिए, किसी को आधार कार्ड अपडेट कराना है, केवाईसी करवाना है. तो जो लोग आपसे मिलते हैं, अगर आप किसी बैंक में जाओ, आप देखो कि इन सारे कामों के लिए वहां पे लोग होते हैं, या कुछ लोग हैं जो आपको विजिट पे आते हैं, मिलने आते हैं.
तो ये FOS इसको बोलते हैं, फीट ऑन स्ट्रीट। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव का रोल रहता है, फिर आप एक ब्रांच मैनेजर के रोल पे चले जाते हो, सीनियर मैनेजर है, स्पेशलिस्ट फंक्शन में चले जाते हो, एक स्पेशल डिपार्टमेंट में चले जाते हो। तो इसका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे रहता है, और जैसे जैसे आपका रोल बढ़ता है वैसे वैसे आपका परसेंटेज बढ़ जाता है। So there are a lot of people, I think, there in the webinar today who are working professionals or maybe the consultants also. I think you guys can go to our website and right there, there is a column, you can generate an inquiry, the numbers will come to us, and then we can talk about it, right? आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, वहां जाके आप देखिए नंबर, हम लोग तब बात कर लेंगे। So this webinar is for the candidates actually, not the consultants. So as I said, salaries are higher, appraisal promotions है, merit मिलता है seniority के ऊपर, if somebody is doing good, तो the bank give them chance to grow easily and grow faster. बट एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि बैंक का जॉब बहुत ज्यादा आसान नहीं होता, कि आपको लगता है कि आप एक बैंक में जॉब करोगे, आपको कैशियर बना के बिठा दिया जाएगा ब्रांच में, और सुबह से शाम तक आपका वही काम है। तो ये थोड़ा सा आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बैंक में मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो आप लोगों को मिलती है, दैट इज मोर ऑफ अ कस्टमर इंटरेक्शन जॉब्स और सेल्स जॉब और फीट ऑन स्ट्रीट जॉब इनिशियली आपको करना पड़ता है, राइट? सो जो प्रोग्राम की मैं आज बात कर रहा हूं उसका नाम है बैंकिंग प्रो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, राइट? जिसका ये 2 महीने का कोर्स है। टू आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 मंथ्स यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट ओपनिंग्स वी हैव। कुछ बैंक्स हैं जो पहले इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे जो आप पहले ट्रेनिंग, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है, कम्युनिकेशन वीक है, इंटरव्यू नहीं दे पा रहा, वो पहले कोर्स करता है, उसके बाद फिर इंटरव्यूज देनी स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर इट। आपके पास अगर 1 साल तक का एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हो। ईयर, अगर आपके पास एज 25 years तक है देन यू कैन अप्लाई। अगर आपका 25 साल से ज्यादा एज है, हम लोग स्टूडेंट को एनरोल कर लेते हैं, बट एक डेक्लेरेशन देना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे जो बैंक है 25 साल से ज्यादा की एज के स्टूडेंट्स को नहीं लेते। अगर वो लेते भी है तो सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, तो हम डेक्लेरेशन लेते हैं पहले से, नॉन प्लेसमेंट डेक्लेरेशन, उसी के बाद एनरोलमेंट होता है। बट अगर आप 25 साल से कम है, आपके परसेंटेज 50% से ज्यादा है, और रेगुलर से पढ़े हो, कोई गैप ज्यादा नहीं है एज क्वालिफिकेशन में, देन इट इज इजी फॉर दी प्लेसमेंट। आयुषी, फ्रेशर्स के लिए जॉब है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका किसी भी सेक्टर में हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बैंकिंग का ही एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका नॉन बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो भी आप कर सकते हो, उसमें इंटरव्यू में कैच मिलता है। अगर किसी का थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, बैंक को लगता है कि थोड़ा वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का, तो ये बेनिफिट भी मिलता है। तो जॉब रोल्स कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बोला, फीट ऑन स्ट्रीट सेल्स के प्रोफाइल ज्यादा मिलते हैं, बैकएंड ऑपरेशंस का भी प्रोफाइल रहता है, बट परसेंटेज बहुत कम रहता है उसका। 2.5 लाख से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, 2.25 टू 2.85 3 लाख रुपीज तक का रेंज एवरेज ऊपर नीचे रहता है। कासा सेल्स ऑफिसर, बैंक ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लोन ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली जो आप ये देख रहे हो, ये इस तरह के जो प्रोफाइल्स हैं इनिशियली वो रहते हैं। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो कई बार थोड़ा सा प्रोफाइल जो है या सैलरी एडिशनल मिल जाती है कैंडिडेट को। 29 years ओल्ड, हिमांशु, एक दो बैंक है जो लेते हैं इस एज ब्रैकेट में कैंडिडेट्स को, जनरली मिलता नहीं है इतनी एज में। मतलब दे आर ओनली 1 और 2 बैंक्स, और फिर आपका एक्सपीरियंस और ये सब मतलब होगा, चेक करना पड़ेगा। तो जितेंद्र जी, 2014 में आपने ग्रेजुएशन किया, या तो आप 24 लिखना चाह रहे थे,
आपने 14 लिख दिया गलती से. इफ यू आर 24 ईयर 2024 ईयर ग्रेजुएट, then you can apply. If you are a fresher passed out in 2014 2010 24 में हम बैठे हैं, 10 साल का गैप है, तो आई डोंट थिंक सो BFSI में हमारे लिए चैलेंज है आपको प्लेस करना. मे बी सम अदर कंपनी कैन हेल्प यू, बट टाइम्स प्रो नहीं कर पाएगा. सो दीज आर सम ऑफ दी प्रोग्राम मटेरियल विच वी टीच. जो आपका जो इंटरव्यू से पहले 2 महीने का प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं. सो दिस इज देयर ऑन द स्क्रीन. NRI बैंकिंग लाइबिलिटी डिपार्टमेंट, अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल companies, insurance companies, forex, asset management, sales and distribution, personal and professional proficiency. We work on the communication and personality development also, so that आप थोड़ा सा presentable रहो इंटरव्यू देने के लिए, बिकॉज वो बहुत फर्क पड़ता है उसमें जब भी आप जॉब देने जाते हो. तो प्रोसेस क्या रहता है, हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, प्रोग्राम फीस लेंगे एक इनिशियल अमाउंट, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका एडमिशन करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस स्टार्ट होता है. वी गिव यू अप टू 5 जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर योर प्रोग्राम इज ओवर, राइट. अगर एलिजिबिलिटी चेक में जो मैंने आपको बोला 25 साल, 50% नंबर, 1 साल का गैप, इससे अगर अलग है, आपका डिविएशन आ रहा है, आपके नंबर कम है या एज ज्यादा है, तो डेक्लेरेशन लेते हैं हम कि यू प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. अपॉर्चुनिटीज हम लोग देंगे, क्योंकि चांसेस कम हो जाते हैं बच्चे के प्लेस होने के, बैंक्स नहीं लेते हैं बच्चा. तो वो बहुत क्लियर अंडर राइटिंग देने के बाद ही हम लोग लेंगे. वी डू नॉट वांट यू टू टेक द एडमिशन, उसके बाद हम लोग बोले आपका एलिजिबिलिटी नहीं बनता. चांसेस कम हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी होता है, बट द चांसेस आर लेस. बट वो हम पहले ही अंडर राइटिंग देते हैं बच्चे को, लेते हैं बच्चे से, दैट यू नो इट, that the chances after 25 years is less. If your percentage is less, even the chance is less. 5,000 rupees enrollment amount है, plus taxes 500 5,900 पड़ता है. Installment, the after the documentation, it is 15,000 plus tax. The total program is for 20,000 plus tax. This is around 24,000 roughly. सिमरन 25 साल से कम हो, यू आर एलिजिबल. टीचिंग एक्सपीरियंस है तो इवन इट इज बेटर. शायद यस बैंक की रिक्वायरमेंट है हमारे पास अभी चलते. तो ये स्टूडेंट्स जो बैंकिंग प्रो के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं, बट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कहाँ से है. जैसे दिल्ली में भी है रिक्वायरमेंट, अभी कैलकाटा में भी है, मुंबई भी है. तो दैट इज हाउ. वेस्ट बंगाल में यस वी हैव रिक्वायरमेंट. सो देर इज वन ऐप, आप अगर स्कैन कर सकते हो स्क्रीन से, या अभी शुभम हैज शेयर्ड वन लिंक इन द चैट बॉक्स. इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक, तो आप ये जितनी फैसिलिटीज ग्रुप में लिखा हुआ है आप लोग यूज कर सकते हो. जैसे नैन्सी सिंह की 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, somebody saying 3 इयर्स है, कोई कह रहा है मैं 29 साल का हूँ, फ्रेशर हूँ. एक भाई साहब कह रहे थे 2014 में ग्रेजुएशन किया था, फ्रेशर हूँ. उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई प्रोग्राम में आप लोगों को खर्चा करना चाहिए. दिस इज फॉर दी फ्रेशर्स. बट ये सब फैसिलिटीज हमारे एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सब फ्री ले सकते हो. यू कैन डाउनलोड दी ऐप. उसमें जॉब पोर्टल है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो. वहां पे जाके यू कैन बिल्ड योर रिज्यूमे. आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो जाके, राइट. बहुत सारे फ्री कोर्सेज दे रखे हैं वहां पे. स्किल सेक्टर काउंसिल अप्रूव कोर्सेज होते हैं, आप ये कर सकते हो. किसी को डोमेन स्किल सर्टिफिकेशन करना है, जैसे हमारा ये वाला प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी वहां पे अवेलेबल है, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये लिंक है, आप इसको कलेक्ट कीजिए. सो नैन्सी, यू आर 26 years old, right? Then there are people, others also, somebody is writing
27 years, somebody is writing 28 years. आप लोगों के लिए मेरे पास ये सोल्यूशन है. somebody is writing 27. भूपेंद्र ने लिखा है 27 साल का हूं, क्या करूं? भूपेंद्र, ये पोर्टल का लिंक है. सोनू मंडल कुछ लिख रहे हैं, बट सोनू मेरे को आपका पुराना चैट दिख नहीं रहा एक्चुअली, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ. कैन यू राइट योर क्वेश्चन अगेन? आर यू राइटिंग समथिंग? सोनू, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज कैन यू राइट अगेन? सोनू प्लीज राइट अगेन इफ यू हैव अ क्वेश्चन. मेरे को पुराना आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. एनीवे, सो गाइज, ये प्लेटफॉर्म है. जिस जिसको भी हेल्प चाहिए, जॉब अप्लाई करना चाह रहा है, रिज्यूमे बनाना चाह रहा है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाह रहा है, और ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ से ले सकते हैं. नैन्सी, कोर्स मिल ज्वाइन करने के बाद जॉब मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू तो आपको खुद देना है. सो यस, वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज. जो मैंने अभी आपको प्रोफाइल्स दिखाई थी, उन्हीं प्रोफाइल्स के अराउंड आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा. राइट? आपको इंटरव्यू तो खुद ही क्रैक करना पड़ेगा. हम आपको बीएफएसआई पढ़ाएंगे, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बीएफएसआई में क्या वर्किंग है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बैंक में कैसे काम होता है, वो तो हम लोग सब बताएंगे आपको. बट इंटरव्यू तो फाइनली आप ही को देना है, विच इज एन 100% श्योर थिंग. So if you'll be able to crack the interview, you will get the job. But yes, giving you best opportunity is our job. वो हम लोग आपको देंगे. 20 fresher, how can preparation? तो बेसिकली देव, अभी मैं ना एक नंबर शेयर करूंगा आपके साथ. यू कैन टॉक टू अ काउंसलर इन डिटेल. सोनू, 25 years अगर क्रॉस कर गया है ना आपका एज, तो हम देखिए एक डेक्लेरेशन तो आपसे लेंगे नॉन प्लेसमेंट का. ठीक है? बट चांसेस है, क्योंकि जो बैंक्स है 25-26 साल तक बच्चों को लेते हैं. बट हमारा रूल है कि हम लोग अंडर राइटिंग तो लेंगे, बट यस, यू विल गेट गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये पक्का है. सो दिस इज द नंबर. किसी को डायरेक्ट कॉल करना है तो इस नंबर पे आप कर सकते हो. सायन, मेरे को आपका बात समझ नहीं आ रहा. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आपने क्या बोला? यस बैंक का सेशन? आप यस बैंक का सेशन अटेंड करना चाहते हो तो अभी जो मैंने आपका लिंक दिया था उस पे आपको दिख जाएगा. अदरवाइज ये नंबर दिया है ना जो मैंने स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे बात करो एक बार, तो जो भी डिटेल में डिस्कशन करनी है आप लोग कर सकते हो. एनीवन हु वुड लाइक टू डिस्कस एनीथिंग, दिस इज द नंबर ऑफ मिस्टर जैद. नंबर है 9424529420. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, अगर अभी नंबर नहीं सेव कर पा रहे हो तो वहां पे आप बात करो तो हो जाएगा. राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन. जितेंद्र सेन, आपको क्या जवाब चाहिए? मेरे को समझ नहीं आ रहा. आप दोबारा क्वेश्चन लिखोगे? मेरा एज 32 साल है, कोई ऑप्शन है या मीटिंग लेफ्ट हो जाऊं? जितेंद्र, मीटिंग तो वैसे भी खत्म हो रही है. मैंने पहले ही बहुत पहले बोल दिया था, फ्रेशर्स के लिए है. बाकी पोर्टल तो आप डाउनलोड कर लो. अगर आपकी एज के रिक्वायरमेंट उतने एक्सपीरियंस के लिए अगर जॉब मिलेगी तो आप कर सकते हो. वहां पे पोर्टल का लिंक हमने चैट बॉक्स पे दे दिया है, उस पे जॉब पोस्टिंग्स आती हैं हमारी. अंकित जमशेदपुर में होगा. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. सो कैन वी वाइंड अप द सेशन, शुभम? द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग.